Jai Bharat, dear all Bacha Party. So in our last lecture, we have discussed about the basic information of biomembrane, right? Okay, if we see the structure of biomembrane, it is similar to the membrane which is present in the organelles also. So about the biomembrane, there are many scientists who gave different kinds of model. Around 15 model was given by many scientists. But mainly there are 3 model which get the recognition, and they are, the first one is sandwich model, right, which was given by Delaunay and Dawson. The second one is unit membrane model, which was given by Robertson, and the third one is Singer and Nicholson model, which is also known as fluid mosaic model, right? So basically we are going to study these 3 model. Out of that 3, let us start with the first model, which is known as sandwich model, right? Okay, why it is called sandwich model? Because the structure of protein and lipid, it seems like a arrangement which is found in the sandwich, right? And that is because it is known as sandwich model. The detailed structure we will discuss later. Okay, plasma membrane is made up of lipoproteinous or lipid and protein, right? So it is lipoproteinous in nature because the plasma membrane made up of what? Lipid and protein. Okay, if you see this diagram, the globular part which I draw in a pink color, that is basically a protein layer. So one protein layer and the second protein layer, and between these 2 protein layer there is a double layer of a phospholipid, right? So basically there are 3 layer: protein, phospholipid and protein, right? But overall it is made up of lipid and protein, so we can say that the nature is lipoproteinous, right? Okay, it is trilaminar, trilemma. Tri means 3, lemma means 3. Tri means 3 and lemma means membrane, sorry, right? So trilaminar or tripartite membrane. Why it is called tripartite or trilaminar? Because there are 3 layer: protein layer, then bilayer of phospholipid, it is considered as a single layer, and the third one is again protein layer, right? One protein layer will remain towards the ECF, right? So basically this part shows what? ECF, extracellular fluid, or outside the cell area, and this area shows what? Cytoplasmic area, right? Okay, so it is a trilaminar structure. Outer and inner layer are made up of dense protein, right? Outer and inner layer. See, this one is the outer layer and this one is the inner layer. Inner layer means a layer which is found towards the cytoplasm, and outer layer means a layer which is found towards the ECF. That both layer is made up of what? Protein, dense protein, right? Okay. Now, the protein are globular type. Remember, this one is the important part. In first model, that is a sandwich model, this Daniel and Dawson say that the protein is globular. In next model, that is unit membrane model, which was given by Robertson, according to the Robertson model, this protein is fibrous, right? And the third model, which was given by Singer and Nicholson, according to that model, they say that the protein is globular. So basically globular protein जो है वो correct है, right? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है. The protein is globular and the type is alpha protein, and that provides stability to the membrane. Okay. Now the next point is middle layer is made up of phospholipid, right? And it is transparent. ये जो middle layer है, that is a second layer. That second layer is made up of what? Phospholipid. किससे बना है वो? Phospholipid, right? And this phospholipid is nothing but the diglyceride molecule, right? And what is that diglyceride molecule? वो अभी हम देखते हैं, ठीक है? लेकिन जो upper part जो है outer membrane, it is a protein. Inner membrane is also protein, and between these 2 membrane there is a double layer phospholipid layer, ठीक है? तो total कितने लेयर हुए? 3. प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन. तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम? ट्राइलैमिनार. क्या बोल सकते हैं हम? ट्राइलैमिनार. ओके, हियर द नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड इज एम्फीपैथिक, ठीक है? जो लिपिड का जो नेचर है वो कैसा है? एम्फीपैथिक. लेकिन उससे पहले हमको लिपिड मॉलिक्यूल जो बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो सपोज अगर मैं लिपिड मॉलिक्यूल बनाऊं तो पहले हम केमिकल स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं, ठीक है? तो ये सपोज CH2OH, CHOH and CH2OH, ठीक है? तो ये क्या है? दिस वन इज अ ग्लिसरॉल. ये मॉलिक्यूल जो किसका है? दिस मॉलिक्यूल इज नथिंग बट द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल. कौन सा मॉलिक्यूल है वो? ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल जो वो क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल,
right, which contain 3 hydroxyl group, OH, 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 right? Okay, out of these 3 OH, 1 OH is participate to join with the H3PO4, means phosphoric acid, right? And the remaining 2 is attached with the fatty acid, remaining 2 hydroxyl group attached with the fatty acid. Out of these 2 fatty acid, one is saturated fatty acid and the another one is unsaturated fatty acid, ठीक है? तो यहाँ पे ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल जो है वो एक फॉस्फोरिक एसिड के साथ अटैच होगा, राइट, एंड इट फॉर्म फॉस्फेट, एंड बाकी के जो 2 हैं दैट विल अटैच विद द फैटी एसिड, और वो 2 फैटी एसिड जो है उसमें एक कैसा है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक कैसा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसलिए अगर हम स्ट्रक्चर जो है वो अगर मॉलिक्यूल फॉर्म में बनाए तो ये सपोज आप ऐसे समझ लो दिस वन इज द हेड, ठीक है, और हेड जो है वो किससे बना है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल, हेड किससे बना है ग्लिसरॉल, एंड देयर आर 2 टेल which is attached with the 1 molecule of glycerol, और ये 2 टेल जो हैं उसमें एक जो है वो कैसा है सैचुरेटेड फैटी एसिड है, राइट, और दूसरा जो कैसा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। एक जो कैसा है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा जो कैसा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर मैं बात करूं सैचुरेटेड फैटी एसिड की, किसकी बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड इज नथिंग बट द हाइड्रोकार्बन चेन CH2 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 CH2. If you see this hydrocarbon chain between the successive carbon there is only 1 bond, right? While in unsaturated fatty acids, supposing that here we have CH2 then CH double bond CH then again CH2, right? If you see properly, one place there is a double bond, so we can break this double bond and enter a hydrogen. So this unsaturated fatty acid has that ability to receive more hydrogen. That means this fatty acid is still unsaturated, right? So one glycerol molecule attached with the 2 fatty acid molecule, out of that one is saturated and the other one is unsaturated. So overall, if somebody asks you that what is the nature of phospholipid molecule, it is always an unsaturated nature, right, because of this unsaturated fatty acid. One more important thing that you need to remember is the head region. This region is known as head region. What it is called? This region is known as head region. It is also known as polar part of phospholipid. It is also known as hydrophilic part. What it is called? Hydrophilic part, because this glycerol is hydrophilic, or hydrophilic is also known as water lover part. What it is called? Water lover part. While this fatty acid part means this lower part or fatty acid chain part, supposing that this lower part, right, this fatty acid part, that fatty acid part is known as tail part, right? It is also known as non-polar part, and this also known as hydrophobic. हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होगा? वाटर हीटर, राइट? तो 2 यहां पे देखिए क्लियरली आपको पार्ट दिख रहे हैं, एक हेड पार्ट कैसा है? हेड पार्ट जो पोलर है और कैसा है हाइड्रोफिलिक, वाटर लवर, और नीचे का पार्ट टेल पार्ट जो है फैटी एसिड वाला वो कैसा है नॉन पोलर, और वो कैसा है हाइड्रोफोबिक, मींस वाटर हीटर। और इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है किसका? ग्लिसरॉल का, दैट शोज एम्फीपैथिक नेचर। एम्फीपैथिक मतलब सेम मॉलिक्यूल has 2 different parts which shows 2 different characteristic features. One is hydrophilic and the other one is hydrophobic, and that is why it is known as amphipathic molecule. I hope कि ये सारी चीजें जो है वो आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है? So this is the structure. Okay, now the next point is amphipathic phospholipid molecule have a polar, ये हमने पढ़ा अभी, ग्लिसरॉल और हाइड्रोफिलिक हेड। तो ये क्या है? ये पोलर है, ये हाइड्रोफिलिक है, और ये कैसा है? हेड पार्ट।
एंड अ नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक और फैटी एसिड और टेल एंड। तो ये जो ब्लैक पार्ट मैंने बनाया वो क्या है, टेल है, नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, राइट। ओके, अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर सच अ वे दैट द हेड रीजन, ये हेड है, दिस वन इज ऑल्सो हेड, द हेड रीजन ऑफ टू लेयर or the head region of two different molecule remain opposite to each other and the tail remain towards the each other। तो दोनों लेयर की टेल जो है वो सामने सामने रहेगी और हेड जो है कैसे रहेंगे, ऑपोजिट एंड में रहेंगे, राइट। ओके, हेड आर बाउंड टू द प्रोटीन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक लिंकेज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहां पे हमको ये नोट डाउन करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो बाहर की सरफेस है वो क्या है, प्रोटीन, और नीचे क्या है, दिस वन इज द लिपिड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो एक तो क्या है, एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है वहां पे, और इसी ये प्रोटीन इसके साथ अटैच रह रहा है। दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा जो है दैट इज आयोनिक बॉन्ड है, राइट, हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड इज आयोनिक लिंकेज एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो तीन चीजें हैं जो सरफेस प्रोटीन को किसके साथ अटैच रख रही है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के साथ। तीन चीज कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड थिंग अगर हम बात करें तो आयोनिक लिंकेज एंड द थर्ड थिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ओके, सेम वे यहां पे भी एक फोर्स लग रहा है। कहां पे फोर्स लग रहा है, बिटवीन द टेल ऑफ टू डिफरेंट लेयर, ठीक है, दो डिफरेंट लेयर के बीच में जो टेल्स हैं जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की, वहां पे भी एक क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और वो जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, वान डेर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स है, वान डेर वाल फोर्स, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। ओके, द टेल आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वान डेर वाल फोर्स। तो ये जो टेल है उसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, वान डेर वाल फोर्स जो है वो लग रहा है, ठीक है। ओके, नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट कंटेन्स व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स पोर्स इन इट, उसके अंदर क्या होगा, पोर्स होंगे, और वो पोर्स की साइज कितनी है, 7 to 10 एंगस्ट्रॉम, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। चलिए, ये जो पूरा मॉडल है विच वॉज गिवन बाय डैनियल एंड डाउसन, क्या ये हम 100% एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा क्या, वो तीन कंडीशन, कौन सी, मेम्ब्रेन शुड बी सिलेक्टिवली परमिएबल, सेकेंड थिंग मेम्ब्रेन शुड बी डायनेमिक इन नेचर। अगर डायनेमिक कब होगा, डायनेमिक तभी हो सकता है कि जब प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो जो वो कैसा हो, वेरिएबल। तो एक चीज याद रखना है कि जो 3 पॉइंट हमने बोले उसमें जो लास्ट 2 हैं, मेम्ब्रेन इज डायनेमिक नेचर एंड सेकेंड थिंग कौन सा था, मेम्ब्रेन शोज प्रोटीन फॉस्फोलिपिड वेरिएबल रेशियो। अगर ये दोनों होंगे, ठीक है, या फिर ये दोनों जो एक दूसरे के पर्यायी है, ठीक है, अगर प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो चेंज हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो डायनेमिक है ही, और अगर डायनेमिक है तो उसका मतलब ये है प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो वो 3 शर्तें जो हैं, क्या ये मॉडल वो 3 शर्तों जो है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, पहले हमको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम देखते हैं कि सपोजिंग दैट ये मेम्ब्रेन का बाहर का पार्ट जो है वो ऑलवेज आपको क्या काउंट करना है, द आउटर पार्ट इज ऑलवेज व्हाट, इट इज अ ECF, राइट, एंड द इनर पार्ट इज ऑलवेज व्हाट, इट इज अ साइटोप्लाज्म पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर जो है वो क्या है, ECF, इनर जो क्या है, साइटोप्लाज्मिक पार्ट। यहाँ पे मैं 2 मॉलिक्यूल बनाता हूँ, ध्यान से देखना, ये सपोज एक मॉलिक्यूल है एंड दिस मॉलिक्यूल इज वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है वो, वाटर सॉल्युबल। और सेम वे में एक दूसरा मॉलिक्यूल भी बना रहा हूं, दिस मॉलिक्यूल इज फैट सॉल्युबल। कैसा है ये, फैट सॉल्युबल। सो हियर वी हैव 2 मॉलिक्यूल which is in ECF, extracellular fluid, and out of that 2, one is water soluble molecule and the other one is fat soluble molecule, right? If we talk about the fat soluble molecule first, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, फैट soluble molecule की। तो फैट soluble molecule जो है that can cross this protein layer, it can cross the glycerol head, it can cross the tail and ultimately it will enter into the cytoplasmic part। मैं किसकी बात कर रहा हूं, फैट soluble molecule की। तो फैट soluble molecule जितने भी होंगे, it can easily we can say that the pass through the membrane, right, from outer to inner, same way from inner to outer side, वो दोनों साइड वो पास हो सकते हैं। कौन से मॉलिक्यूल, इफ इट इज अ फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल। अगर हम वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल की बात करें, देन water soluble molecule can cross this protein layer, it can also cross the head region, but
इट कैन नॉट क्रॉस द टेल पार्ट। टेल पार्ट को क्या नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज टेल पार्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट, फैटी एसिड, एंड फैटी एसिड शोज हाइड्रोफोबिक नेचर। कैसा है वो? हाइड्रोफोबिक। तो उसका मतलब ये है कि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो यहां से अंदर नहीं जा सकते। लेकिन क्या वाटर सेम वे यहां पे भी होगा, जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जा रहे हैं वो यहां तक आ सकते हैं, उससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो यहां पे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो है उसके लिए और फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए ये मेम्ब्रेन कैसा है, सेलेक्टिव परमिएबल है, वो बात पक्की है। लेकिन ये मॉडल ये नहीं समझा पाया कि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल यहां से नहीं अंदर आ रहे हैं, चलो वो मान लिया यहां से अंदर नहीं आएंगे, लेकिन वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के अंदर है ही नहीं। साइटोप्लाज्मा में तो बहुत सारे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, इवन मैक्सिमम पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है। तो पानी तो अंदर आ रहा है लेकिन यहां से नहीं आ रहा है, लेकिन वो कहां से आ रहा है वो ये मॉडल जो है वो नहीं बता रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये सेलेक्टिव परमिएबल है, वो ये मॉडल जो दिखा रहा है, ठीक है। अब बाकी की दो चीजें जो है वो देखनी पड़ेगी हमको। कौन सी? कि मेम्ब्रेन जो है उसमें फॉस्फोलिपिड रेशियो जो है वो मेंटेन है या फिर वो चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें उसकी, तो जब डैनियल और डाल्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक पर्टिकुलर एरिया को कवर किया, सपोजिंग दैट दिस इज द एरिया, इतने एरिया को उसने कवर किया, और ये एरिया में उसने चेक क्या किया, उसने चेक किया प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड रेशियो, ठीक है। अब प्रोटीन इसमें कितना है देखिए, 6 प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड भी कितना है इसमें, 6 फॉस्फोलिपिड है, और जितनी बार उन्होंने चेक किया उतनी बार उनको यही रेशियो जो है वो मिलता रहा। उसका मतलब ये है कि प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड रेशियो जो कैसा है, स्टैग्नेंट मिला उनको। अगर ये स्टैग्नेंट है तो उसका मतलब ये है कि द नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड इज नॉट डायनेमिक, इट इज अ स्टैटिक। और स्टैटिक तो है नहीं, नेचर तो कैसा है, डायनेमिक है। क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बताया कि ये चेंज होना चाहिए, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो अगर चेंज हो रहा है तभी हम ये बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, क्योंकि ये रेशियो चेंज होगा तब, ठीक है। ओके, तो अगर ये चेंज हो रहा है तो ही ये मेम्ब्रेन कैसा है, डायनेमिक। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो इज स्टैग्नेंट और कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट है दैट शोज दिस मेम्ब्रेन शोज व्हाट, स्टैटिक नेचर। और स्टैटिक नेचर तो एक्चुअली है नहीं, नेचर कैसा है, डायनेमिक है। तो ऐसे बहुत सारी 3-4 ऐसी हम ये बोल सकते हैं कि ड्रॉबैक थे इस मॉडल के, वो हम देखते हैं। फर्स्ट, अगर हम ड्रॉबैक की बात करें, फंक्शन स्पेसिफिसिटी, वाटर मॉलिक्यूल कैसे अंदर आ रहे हैं वो समझ में मतलब ये मॉडल जो है वो हमको नहीं बता रहा है, ठीक है। या फिर उसका स्पेसिफिक फंक्शन मेम्ब्रेन का क्या है वो भी ये मॉडल जो है वो नहीं दिखा रहा है, सिर्फ अरेंजमेंट जो है वो दिखाया, वो सही था। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस वो कैसे आ रहे हैं अंदर, वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखाया गया, ठीक है। थर्ड थिंग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब movement of molecule from its lower concentration towards its higher concentration, that means against concentration gradient। कहां पे हम बोल सकते हैं, against concentration gradient, that means movement of molecule from its lower concentration to higher concentration, that required expenditure of ATP, right। लेकिन ये कैसे होगा, ये भी ये मॉलिक्यूल, ये जो मॉडल है वो समझा नहीं पाया था, ठीक है। and that is because this model is not accepted। वेरिएबिलिटी और डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या होगा, ये कांस्टेंट चेंज होना चाहिए, ठीक है, और चेंज होगा भी। जैसे मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ रहे हैं, अंदर से बाहर आ रहा है, तो ये थोड़ा तो चेंज होना चाहिए, लेकिन वो स्टैग्नेंट है। अगर वो स्टैग्नेंट है उसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्टैटिक, लेकिन वो है नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कैसा है, डायनेमिक है। तो इसलिए ये जो हमने 4 पॉइंट बताए, वो 4 पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं कि ये मॉडल which is sandwich model given by the Daniel Dawson is not acceptable, ठीक है, क्योंकि वो तीनों शर्त को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी जो है जो इंफॉर्मेशन ये मॉडल नहीं दे पा रहा है, राइट, और इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। आई होप के सारे कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आए होंगे। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप YouTube चैनल जो सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ और भी बहुत अच्छी फैकल्टी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, JEE के लिए, ठीक है, बहुत ही अच्छी टीम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आपको ऐसा कंटेंट दे पाएंगे कि आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे और अपना भविष्य जो है वो उज्जवल बना पाएंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, लव यू ऑल, विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।